So binomial distribution has some property, you can just use that. Or so what is the problem? The first question, if x is a random variable which follows binomial, so this x is, ये DPP21 जो ग्रुप में भेजा देखिए. सो ऐसे बहुत सारे DPPs हैं ड्राइव में, तो अगर आप वो देखेंगे तो लाइक x इज binomial 5 p. So what they are asking, पहला x is less than equal to 2 is equal to x is more than equal to 3 if and only if p is half. So you can check. तो जस्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, सेम ही तो है. सो वन वे यू कैन चेक थ्रू, है ना, ये रिजल्ट एक्चुअली, दीज आर रिजल्ट दैट यू कैन यूज डायरेक्टली. ये पहला बोल रहा है. सो विच क्वेश्चन यू वांट? फर्स्ट क्वेश्चन ना. तो इसमें क्या है? ए पार्ट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 is equal to probability x is more than equal to 3. So means what? So it is actually x is equal to 0 1 2 is equal to probability x is equal to 3 4 5. So सम कर लो तो इसमें क्या आ जाएगा? So यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे लाइक सिंपल है, 5c0 and plus 5c1. So it will be, I think it will be actually p is half. So ये ओके है ना. उसकी वजह ये है, the thing is summation n choose r p की पावर r 1 minus p raised to power 5 minus r. So r will take value 0 to 2, and here again you sum it. 5 choose r p raised to power r 1 minus p raised to power 5 minus r from 3 to 5. So we know nc0 is equal to 5c0 is equal to 5c5, then 5c1 is equal to 5c4, and 5c2 is equal to 5c3. So using that, तो if you put it equal, तो equal मतलब normally solve करना difficult हो जाए, but you can see why it is happening. हाँ. So अगर p half रहेगा तो obviously equal होगा, और equal होगा तो p half होगा. So what is doubt in this? So both will be equal if and only p is half. उसकी वजह ये है कि ये टर्म्स यू कैन टेक कॉमन. जो कॉमन टर्म्स है ना, आप उसको बाहर कर लीजिए. सो लाइक 5c0 and 5c5 you keep it together, one and 5c1 and 5c4 you keep it together, and 5c2 and 5c3 you keep it together. Then what will happen? And both are equal, so you will just have common factors, and both will be equal if p is equal to half, or even difference will be 0, you bring it left side, that's why. And second part is less than equal to 1, more than equal to 4. Or you can do just experiment na. For here you just put p is equal to half and check whether it is happening or not. One side, first you check one side and then you see the other side. So it is if and only if. So you just see one side. When you put p is equal to half, this will be equal, obviously yes. Now if they are equal, what will happen? So if you want to prove, you bring it into left side and then you take the common. So I think you will get p is equal to 1 minus p, and then you will have p is equal to half. होगा? इसमें सॉल्व करूं आगे तो जैसे क्या करना है, 5c0 और 5c5 को एक साथ कर लो. तो सिंपली व्हाट आई एम सेइंग, जब 5c0 लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वी राइट 5c0, p रेज़ टू पावर 0 1 माइनस p रेज़ टू पावर 5 होगा. एंड इधर जब 5c5 हो रहा होगा, सो p रेज़ टू पावर 5 एंड 1 माइनस p रेज़ टू पावर 0. सो मेनली ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगे और यू जस्ट टेक कॉमन. तो एट द एंड व्हाट आई थिंक, व्हेन यू ब्रिंग ऑल टर्म्स लेफ्ट साइड, ये कुछ ऐसा आएगा कि इसमें इक्वल आ जाएगा. मुझे लगता है p इज इक्वल टू 1 माइनस p टाइप. सो 2p इज इक्वल टू 1,
सो p इज 1/2। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड में क्या है, तो अभी के लिए जस्ट आप p को हाफ से कम ले लो, यू जस्ट टेक p इज इक्वल टू लेस देन हाफ एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल 1/4 एंड देन यू चेक व्हाट इज हैपनिंग। मतलब यू डोंट, देखो एंट्रेंस में कभी भी प्रूफ करने का कोशिश नहीं करना है ना, इफ यू राइट द प्रूफ इट विल टेक टाइम, बट you have to either use the theorem or you just take example and then try to verify or discard, and then you have to convince that it is true. So you have to, इसमें डाउट क्या पूछना है आपको, वेरिएंस इज मिनिमम, सो व्हाट इज वेरिएंस, द थर्ड पार्ट जो है पार्ट बी वैसे ही हो जाएगा, यू टेक p लेस देन हाफ देन चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, सो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ जाएगी। अच्छा तो इसमें यहाँ पे आपका जब, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब डिस्कार्ड करना, यू जस्ट टेक वन एग्जांपल, व्हाट आई एम सेइंग, यू टेक वन एग्जांपल एंड ट्राई टू डिस्कार्ड इट, कि वेदर अगर कोई एग्जांपल मिल गया जिससे गलत हो जाएगा, मान लो p लेस देन हाफ बोला है, सो इफ आई टेक p 1/4, नाउ यू चेक द लेफ्ट साइड, चेक द राइट साइड, सो अगर ये डिस्कार्ड हो जाएगा, आई थिंक चेक करके देखिए, सो लेफ्ट साइड इज सिंपल, इट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, x मोर देन इक्वल टू 4, तो ये कब आएगा ऐसा, so probability x is 0 1 and probability x at 4 5, चेक करके देखिए, so again they are equal, so I think again p has to be half actually, होगा, चेक कीजिए, in the similar condition p half के इक्वल आएगा, you keep all terms left side, again p यहाँ से half आ जाएगा, और अगर if you put p is equal to 1/4, find the value of this and find the value of this, both will be different, you just check it, and the c part is actually, part c is वेरिएंस इज मिनिमम है ना, सो वेरिएंस ऑफ x इज मिनिमम, सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, एन पी क्यू, यहाँ x है बाइनोमियल 5 इंटू पी, so 5p 1 minus p, you take it as a function, for example g of p I take, then it is g of p is equal to 5p minus 5p square, you just differentiate it, so 5 minus 10p, and you take double derivative, so it is minus 10, double derivative is negative, and you put g dash p as 0, so p will be 1/2, so means this variance is, double derivative is negative, means maxima at 1/2, so c is also true, so a is true, b is false, because it is less than 1/2, it will be p is 1/2 I think, for p is equal to 1/4, a है ना, left side right side both will be different, and variance is negative maximum when p is half, but they are saying it is saying minimum, double derivative negative now, so npq, 1 minute, variance is npq, so 5 into p into 1 minus p, we have taken 5p minus 5p square, differentiate it, 5 minus 10p, double derivative is minus 10, negative, double derivative negative means what, it is point of maxima, local maxima, so that will have maximum value na, check, so variance will have a maximum value when p is 1/2, so what they are saying, minimum, so it is false then, it will be false, c option will be false na, it is maximum, no, double derivative is negative, so it will have maxima. So it is there are few answers may be wrong in answer key, so don't worry about that hai na, so the people who made it might do mistake. So the second, I have doubt in the second question. This one is okay for me. I have come across doubt in the second question, where there is an option mode and harmonic question. So I have a doubt. It is simple that I am asking you whether we have to learn the mode of a distribution, or we have to derive at the time, because the time constraint is there. So is it better to learn the mode equation, or is it better to derive at the time and find for that distribution? So that So was my question. This is long time it uh, yes, taken to. for the standard distribution, if you can remember mean, variance, mgf, mode, median,
it will be easier for you if they ask an exam. Like in the last class, we have seen like they asked median of the exponential distribution. So you might remember it or you have to derive. So like I derived in the last class. So it was lambda upon log 2 something, log 2 upon lambda. That was there. So if you remember, it will be easier for you. If you don't remember, then you have to derive. Okay. And C D option cannot be verified by myself for C that option. question. Two C and D. Okay. Yeah, I didn't get any idea about that. Okay, question number 2, C and D. So it will be better now you ask the Yeah. option. Yeah. So question number 2, C and D. So question number 2 is actually n is 5. So what is it saying? N is equal to 5 you are putting. So probability x is more than 5 when n is 5. Hai na? So they are taking n as 5. So n is 5. And probability x is more than 7 when n is 7. Okay. So what is the relationship between their probabilities they are asking ना? अच्छा यहाँ 5 है ना, दोनों जगह 5 है. Check. It is 5 only. So you are not able to calculate it. So x has gamma distribution with parameter 5 comma theta. Okay. And in the first case, in the second case, x has gamma distribution with 7 comma theta. Okay. So you can relate it with chi-square. Na? What if you just make it chi-square? So if I fix some common theta here, so can we relate it now? So like if I assume theta is half for the time being, then x will have distribution gamma 5 comma 1 by 2 is like chi-square 10 n by 2. And here in this case, if I take theta as 1 by 2, so then and for the one theta, just I'm checking what will happen. So one option will be false, another will be true out of CD. So it will be actually when theta is half. So this will be chi-square 14. Now do you know the relationship between PDF of these two? Chi-square 10 and chi-square. So what happens if degree of freedom increases? Tell me. So like it is degree of freedom here is, this is graph for chi-square 10, assume, and this is graph for chi-square 14. Now what will happen? So can you take the complement? If I take the complement, then what will happen? It is 1 minus probability x less than equal to 5. It is 1 minus probability x less than equal to 5, right? So suppose 5 is the number. So where will be the 5? I think degree of freedom is too much now. So what I think there you may find 5 somewhere. So can you compare these probabilities? This and this. So P with a degree of 5, the 5 is n is equal to 5 actually. So what is the relation between them? N is 5. So probability x less than equal to 5 will be less than the probability x less than equal to 5 when it is 7.
जस्ट राइटिंग n, है ना. So 5 means n is 5, n is 7. Okay, so can you take the complement now? Are you getting what I'm saying? So take the complement. So complement will be p5 probability more than 5 will be more than p7 x more than 5. Is it true? Check. So which is more? I have taken less than, na? Oh, sorry. So this is less. For 5 it was more, na? I have written wrong here. So n is 5 where? Here n is 5 actually. Here n is 7. So area under the curve is a probability. So under 7, for the 7 it was less. For the 7 it was less. So this is more, na? Actually this part is the probability for n is 5. When n was 5 it is chi-square 10. This is graph of chi-square 10. So this probability is more, na? This is more. So here it will be less. Is it fine? Are you getting or not? You ask questions if you are not getting. Yes, it's clear, sir. Thank you. Yeah. So you can just take the special cases, है ना? Then one option will be discarded, the other will be true actually. That's why. So by this way we can calculate. This is probability less than 5. So under the chi-square 10 is more area than the under chi-square 14. And chi-square, है ना? So this gamma can be converted into chi-square. So you are doing good, है ना? You solve all DPPs. There are DPP I think 200 already uploaded and more will be uploaded. You solve it, it will help you. ओके सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बाकी लोगों के लिए जो हम लोग PYQs कर रहे थे. नेट गई PYQs देखते हैं. अगर आप लोगों के पास नेट का PYQ है रैंडम वेरिएबल का जो आपने सॉल्व किया हो नहीं हुआ हो तो वी कैन डिस्कस. अभी यूनिवेरिएट मैंने थ्योरी डिस्कस किया है, ओनली यूनिवेरिएट. अभी बाईवेरिएट स्टार्ट करूंगा बट कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिवेरिएट के जो आपने सॉल्व किए हो, चाहे नेट के हो या आईएसएस के हो या कोई भी एग्जाम के हो, जैम नेट गेट आईएसएस या नॉन पीवाईक्यू या बुक के क्वेश्चंस हो, स्टिल यू कैन आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके बट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन. स्टिल मैं कह रहा हूँ जितना आप मेहनत कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा. सो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे. सो वेयर एवर यू प्रैक्टिस. सो इसमें बहुत सारे डीपीपीज हैं आप देखेंगे. सो यू कैन सॉल्व दिस मच डीपीपीज. ये सब रैंडम वेरिएबल एंड ऑल दैट है. तो अगर आपके पास टाइम है सो यू कैन सॉल्व ऑल दिस डीपीपीज. एक डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन इन वन डीपीपीज. इस वाले फोल्डर में है टोटल. अभी मैं अपलोड करूंगा, 1 तारीख आ गया ना, तो हर महीने वो मुझे अराउंड 50 to 100 डीपीपी बना के देता है. सो इस फोल्डर में अभी अगले कुछ टाइम में आपको 500-600 डीपीपी मिलेंगे. दैट विल कवर बेसिक सिलेबस ऑफ जैम गेट स्पेशली. अभी देन नेट का भी बन रहा है, तो अभी 170 इसमें है. अभी मैं कुछ और ऐड करूंगा. सो मोस्टली रैंडम वेरिएबल के ही होंगे. तो अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था वो डीपीपी 21 का था. ठीक है, तो अभी के लिए चलो. तो ये वाले में नॉन PYQ डीपीपीज हैं. ये फोल्डर है PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज. इसके अंदर जाएंगे तो ये सब दिखेगा. इसमें आप PYQs यहाँ पे है और नॉन PYQ यहाँ पे है. जैसे मैं अगर ये खोलूँ तो इसमें नेट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना. तो 16 to 19. जैसे मैं अगर अभी ये खोलूँ तो ये तो हम कल कर ही रहे थे ना, तो इसको अभी रहने दो. 16 to 13. अच्छा मैंने 19 लिख रखा है. तो ये लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे. अरे यार इसका कुछ प्रॉब्लम है आज. फिर तो अरे लग नहीं रहा मुझे ओपन होगा. इसमें आई थिंक है ना प्रॉब्लम है, क्योंकि आज पता नहीं इसमें क्या, कभी कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है. तो
इसमें क्या है? तो ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। सो मैं असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। तो देखो, इसमें जो टॉपिक हमने किए यूनिवेरिएट के आगे क्वेश्चंस हैं, तो ग्रुप में भेजा है मैंने। सो So question number 3 is I think base theorem that we have done. Question number 4 is joint distribution, joint MGF, and I think question number 7 we can do. Question number 7 देखिए, तो इसमें question number 7 जो है that is saying कि x has distribution Poisson 3/4. Then which of the following statement is true? So the first option is, ये CSR net 2000, अच्छा ईयर नहीं लिखा इसमें इसने, so probability x more than 7, this 9 है ना, x more than 9 is more than equal to 11/12. B option is probability x less than 9 is more than equal to 11/12. C option they have given expectation x minus 3/4 whole square more than equal to 11/12, and next one D option they have given you. So ये CSR नेट के PYQ के क्वेश्चन है। 11x/9 has distribution Poisson 11/12. ओके, तो उसको ट्राई करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 इज x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट। सो कह रहा है x बिलोंग्स टू x हैज सपोर्ट -101 and probability x is equal to 0 they have given 1/3. Then which of the following statement is true? Then they are asking you option A is ex is less than equal to 2/3, B ex square is equal to 2/3, C e of mod x this is 2/3, and D variance of x is मोर देन 2/3। ये उसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन नंबर 11, द सेम असाइनमेंट। मतलब इट इज PYQ क्वेश्चन ऑफ CSR नेट। ओके, कई सारे क्वेश्चन इसमें हैं। एक्चुअली मुझे लगता है थ्योरम ये ओपन होगा, तो ये कर लीजिए, मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ एंड अभी आई विल टीच, है ना। सो देर आर मेनी क्वेश्चन इन दिस असाइनमेंट फ्रॉम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई थिंक आई विल, है ना, first discuss some theories based on these distributions, some like theorems of transformation and all that, then we can discuss more. There are many questions. Okay,
So quickly you tell the answer. I think it's easy. Maybe more than one correct answer. Okay, let us discuss. So first one is Poisson 3 by 4. So first two option is someone like something like if you use Markov inequality, so what will happen? Or it is so what if you use Markov inequality here? देखो तो इसमें क्या बोल रखा है कि x is Poisson 3 by 4. तो यहाँ से जो ex आएगा आपका that is 3 by 4. What is the probability x less than equal to 9 is actually more than equal to, ये होता है ना, या क्या होता है इसमें more than equal to ना. First form is x is more than equal to 9 will be less than equal to ex upon 9. तो ex कितना आ जाएगा 3 by 4 अपॉन 9. सो ये कैंसिल कर लो. आई थिंक 1 by 12. तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो. यू टेक कॉम्प्लीमेंट. तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. दूसरा फॉर्म भी था ना, देर वॉज अदर फॉर्म. अदर फॉर्म इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 9. सो एक्स लेस देन 9 इज एक्चुअली दैट इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 by 12 11 by 12. यही आ जाएगा. 1 माइनस ई एक्स बाई 9 ये था ना. तो ये इसका सो यहाँ से क्या आ जाएगा. आई थिंक दिस इज ओके. तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज ट्रू. फाइन. एंड अब सी और डी में बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus 3 whole square, x minus 3 by 4 whole square. So here you can use Jensen's inequality. ये जो ऑप्शन है सी, इसमें आप Jensen's inequality लगाइए. So x minus a whole square is convex function. So it is a convex function actually. And 11x by 9 will not be a Poisson because Poisson distribution has support 0, 1, 2, 3. And this random variable will have support something else. So this will be wrong. Just check C. And C में just Jensen's inequality लगाइए. So using Jensen's inequality, what will happen? So Jensen's inequality लगाएंगे. तो expectation of gx is more than equal to g of expectation x, is it? So now we use this result, expectation of gx. What is gx? Gx is x minus 3 by 4 whole square. So this is x minus 3 by 4 whole square more than equal to ex minus 3 4 whole square.
एक मिनट है ना। क्या ये कॉन्वेक्स फंक्शन है? पहली बात ये देख लो, कॉन्वेक्स फंक्शन होगा ना ये। सो 3/4 पे ये है कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन द सपोर्ट ऑफ दिस। हम्म ठीक है, इसको चेक कर लो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन x माइनस 3/4 इज मोर देन इक्वल टू ई एक्स कितना, ई एक्स 3/4 ही तो 0 आ गया। तो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं ऐसे। व्हाट कैन बी द सेकेंड अप्रोच, ई ऑफ जी एक्स। तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा ऐसे। हाउ टू चेक सी ऑप्शन, so we can just expand it. One other way is we can expand it and then we can check. एग्जैक्ट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं ना, इफ यू वांट वी कैन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, C C is variance of x. सी इज वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ एग्जैक्टली। तो वही कह रहा हूँ, डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग ये वेरिएंस है, सो वेरिएंस कितना होता है पॉइसन में, वेरिएंस एक्स, हमारे पास मीन और वेरिएंस तो सेम ही रहता है पॉइसन में ना। तो ये 3/4 हो गया, मोर देन इक्वल टू 11/12। तो अगर इसको 9/12 तो गलत है ना, दिस इज फॉल्स। हाँ एक्चुअली ये वेरिएंस है, तो मैं पहले वो लगा रहा था ना। तो मोर देन इक्वल टू 0 आ गया। सो वेरिएंस एक्चुअली x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, तो ये गलत है ना, ये सही है। यहाँ पे देख लीजिए, तो मतलब ये सब नेट का ही क्वेश्चन है, जितने भी यूनिवेरिएट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आगे मैं थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ। एक बार हम लोग एंड में फिर से एक बार क्वेश्चन जब ये ओपन हो जाएगा, इसमें आज ओपन नहीं हो रहा, या मैं यूनिट वाइज बना रहा हूँ तो यूनिट वाइज में ढूंढना नहीं पड़ेगा, वी विल हैव टुगेदर, एक जगह सारा रहेगा, यूनिवेरिएट का एक जगह रहेगा, तो सॉल्व करना आसान रहेगा। अभी के लिए देखिए, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका सपोर्ट है -101 एंड एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही होगा। सर जी, ऑप्शन सी में ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही होगा ना? ऑप्शन सी में ये वाला, हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11/2 होगा क्या? नहीं ऑप्शन में मतलब ऑप्शन लिखा था ना, तो ऑप्शन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये तो ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, वो तो हमें चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखो यहाँ पे, बी में या सी में बात कर रहे हैं आप, सी में। सी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 11/2 से, वेरिएंस। 11/12 लिखा हुआ है ये। हाँ, 11/12 से। तो ये कितना आएगा, इसको अगर 12 बनाएंगे तो कितना बनेगा, ये 3/4 है ना इसका वेरिएंस। पॉइसन में वेरिएंस कितना होता सॉरी सर, सॉरी, है ना। 9/12 आएगा, सॉरी सर। हाँ है ना, हाँ ये 9/12 मोर देन 11/12 होगा, मोर देन इक्वल टू, तो आंसर इज नो, इसलिए गलत है ना। ठीक है, सो ठीक है, इस पे आते हैं। तो इसको आप चेक कीजिए, एक्स का सपोर्ट है -101, एक्स बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो आपको चेक करना है इनमें से क्या सही होगा। आई थिंक ये तो ओके हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1/3, बाकी पे प्रोबेबिलिटी का सम p और 1 माइनस p ले लो। तो मान लो फॉर द टाइम बीइंग x इज इक्वल टू 1 इज p, सो
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, तीनों का सम 1 हो जाएगा। सो 1/3 प्लस p, मतलब प्लस मान लो कोई नंबर p1 p2 इज 1, 2/3 माइनस p, ऐसा हो जाएगा ना। अब इसका निकाल लो एक्सपेक्टेशन से, e ऑफ मॉड x जब आप निकालोगे, व्हेन यू फाइंड e ऑफ मॉड x, तो ये 2/3 आ जाएगा। सो दिस इज ओके। e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो एक्स स्क्वायर निकालोगे तो x की वैल्यू, ये भी आई थिंक ओके आएगा, -1 का स्क्वायर इंटू p दिस, प्लस 1 स्क्वायर इंटू दिस, 0 स्क्वायर इंटू दिस। सो b और c तो सही है। अब अगर ई एक्स अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो ई एक्स क्या मिलता, यहाँ से आता p, और ये -2/3 प्लस p, 2p माइनस 2/3, यही आएगा, वेर p कैन टेक प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन ये सपोर्ट में है, और क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ p अभी मैं, है ना, 0 नहीं लूंगा, 0 से 1 के बीच रखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2p तो मोर देन 0 होगा, ये सही लिखा है मैंने, देख लीजिए, ई एक्स, जरूरी नहीं है क्योंकि p की वैल्यू लेस देन, मान लो 1 ले लेता हूं मैं, तो 2p लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2p माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3 6/3, एक मिनट, 2p माइनस, सॉरी 4/3, ये तो 4/3 ऐसा कुछ आ रहा है। और वेरिएंस, वेरिएंस के लिए ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर, उसका देख लो। तो यहाँ इनइक्वलिटी लगा कर चेक करना पड़ेगा आपको। बताइए जी क्या आंसर हो सकता है, ये पूछ रहा हूँ, इनमें से आंसर्स क्या पॉसिबल है। BC तो सही है, ए और डी के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ से ये समझ आया कि जो ई एक्स है ना 2p माइनस 2/3 है, तो ये वैल्यू एक्चुअली अगर वैसे लिखते p 0 से 1 में है, सो 2p माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 4/3 और मोर देन इक्वल टू -2/3, यही हो सकता है। तो जरूरी नहीं 2/3 से कम होगा, तो आई थिंक 2/3 ज़्यादा भी हो सकता है फॉर डिफरेंट p। एंड वेरिएंस, वेरिएंस क्या बोल सकते हैं, सो ई एक्स स्क्वायर इज 2/3 एंड ई एक्स का होल सर स्क्वायर। वेरिएंस को फॉर्मूला वाइज लिखिए, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हाँ ऐसे लिखने के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वी गॉट 2/3 प्लस हाँ, तो यहाँ से जो एक वेरिएंस स्क्वायर पार्ट है, और स्क्वायर पार्ट तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, उसको ड्रॉप कर देने के बाद 2/3 inequality आ माइनस जाएगा। 2p माइनस 2/3, यही ना, हाँ, ये होल स्क्वायर। अच्छा तो ये तो हमेशा, तो ये तो है कि ड्रॉप दिस करने इज के बाद ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2/3 तो होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता ना, हाँ तो ये तो ठीक है, वेरिएंस इज। और 2p माइनस 2/3 क्या हमेशा, इसने क्या लिखा, स्ट्रिक्टली मोर देन लिखा है, लेकिन ये दे हैव रिटन मोर देन 2/3,
ठीक है ना, ई एक्स स्क्वायर 2y3 होगा, लेकिन मोर देन तो नहीं होगा ना, लेस देन होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन बी एंड सी आकर ये सब नेट में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यूनिवेरिएट के क्वेश्चंस हैं जो ड्राइव में हैं, अगर आपको फाइल्स नहीं मिल रहा है तो दिन मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बट यू ट्राई, जितने भी क्वेश्चंस नेट के हैं या गेट के हैं, है ना, या जो डीपीपीस के हैं, यू सॉल्व इट वन बाय वन, जो भी डाउट है। सो यू कैन डिस्कस हियर ऑल्सो, और यू कैन डिस्कस इन डाउट क्लास ऑल्सो, है ना, 11 to 12 रात को होती है। सो अभी के लिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ थ्योरीज। सो जैसे समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसे अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन की, मैं थ्योरी कंटिन्यू करता हूं ना। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, देयर इज अ थ्योरम दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को पता है आप लोगों को व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन? एनीवन टेल व्हाट इज दिस थ्योरम? तो दिस इज वन ऑफ द वे, है ना, ट्रांसफॉर्म, इस पे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो थ्योरीज एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे एक साथ, या आप खुद सॉल्व करो, देन यू आस्क डाउट्स। सो डाउट्स के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। ये किसी को याद नहीं है? ऐसा कैसे भाई? सो द थ्योरम सेज दैट लेट एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूअस, पता सबको होगा, यू माइट नॉट बी नोइंग नेम, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। so let x be any continuous random variable and u y is equal to fx at x, so gx type का ना, then what is distribution of y? then what is distribution of y? ये क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म 0,1। हाँ, ये यूनिफॉर्म 0,1 होगा। सो इसी थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक कोई पीडीएफ आप लिख लो, है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से एग्जांपल इज, सो आई राइट पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सो 6x इंटू, अच्छा x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना आएगा 6x इंटू 1 माइनस एक्स, x 0 से 1 and 0 otherwise. तो sometimes what will they do, they will just write y is equal to, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, so 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? so एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ से सिंपली, so if you realize okay this is nothing but the CDF of this random variable over when x is 0 to 1, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे CDF है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? यूनिफॉर्म 0,1 आएगा, एंड बाद में उससे एक और कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट और क्या आता है ट्रांसफॉर्मेशन में? सो देयर इज वन मोर थ्योरम दैट कि लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड g बी अ मोनोटोनिक फंक्शन on support of x. So x be a continuous random variable, g be a monotonic function on support of x. So if y is equal to gx, okay, so monotonic differentiable function. So monotonic differentiable function, ठीक है ना, monotonic होगा तो differentiable होने गारंटी है। ये इनफ है, मोनोटोनिक कंडीशन इनफ है, क्या डिफरेंशिएबल अलग से लिखना पड़ेगा?
तो अभी डिफरेंशिएबल ले लेता हूँ। तो function on support of x. If this, then what is PDF of y? So how to find PDF of y using PDF of x? क्या हो जाएगा? बताओ भाई, ये तो पता होगा आप लोगों को. So this is fx of x into dx upon dy mod. This is Jacobian in one variable actually. So this is Jacobian in one variable. So या ऐसा लिख सकते हो कि PDF of y at y this is equal to fx और यहाँ g इनवर्स आ जाएगा. So g inverse y into d upon dy of g inverse y, है ना. यहाँ y का कोई सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, सपोर्ट ऑफ y. That is the formula when it is monotonic, है ना. For example, if I write one basic theorem based on it, so the question is, let's say this is a theorem in fact, but the proof of this theorem I will prove from this. So x is uniform 0 1, then what is distribution of -2 log x? This is very standard theorem, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं. किसी को याद है? सो x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? chi square 1, chi square 1 नहीं, chi square 2, है ना. chi square 2, हाँ. So this will be chi square 2. In fact, generalized version is, so generalized version of this theorem is actually when x is uniform 0 1 and y is minus lambda log x. Okay, then what is distribution of y? Then what is distribution of y? एक्सपोनेंशियल लैम्बडा. हाँ. सो यहाँ पे अब रेट आप क्या लोगे, तो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे, सो chi स्क्वायर 2 में मीन 2 था. सो लैम्बडा मतलब रेट मैं 1 बाई लैम्बडा लिख देता हूँ. तो एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्बडा, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा इज द रेट एक्चुअली. सो ठीक है, तो यहाँ लैम्बडा मीन आएगा एक्चुअली इसका. मैं इसको प्रूफ लिख देता हूँ ना. सो लेट अस राइट प्रूफ. सो यहाँ पे Yes, sir, रेट this is पैरामीटर इज shown लैम्बडा. below. लैम्बडा नहीं, मैं बोल रहा हूँ लैम्बडा इज द मीन एक्चुअली. सो EY विल बी मीन and rate of y will be, rate parameter will be 1 by lambda. चेक करते हैं. So what notation we follow? जैसे सिंपल है तो यहाँ से अगर लिखेंगे प्रूफ, सिंपल है प्रूफ ना. So first you check is it monotonic. So dy by dx अगर निकालोगे आप तो minus lambda upon x and this will be negative for all x positive जो support है x का. So means y is monotonic function of x. And now if it is a monotonic function of x, then what is PDF of y? So according to formula, PDF of x into dx upon dy. So PDF of x is actually 1, it is uniform 0 1 and dx upon dy, तो dy upon dx ये है. So x upon lambda यही mod हो जाएगा. Then you find the value of x from here. So if you find the value of x from here, so x will be e raised to power minus y upon lambda. So this will be 1 by lambda e raised to power minus y upon lambda. Y will be more than 0. So what is PDF of y? 1 by lambda e raised to power minus y by lambda. There is exponential 1 by lambda. And coincidence, you know, chi square 2 is identically distributed with exponential 1 by 2. है ना? So what is the remark? So in this theorem, what we use? Exponential rate 1 by 2 will be identically distributed with chi square 2 distribution. Okay, chi square with 2 degree of freedom. So है ना, तो on the base same theorem we use this. When x is uniform 0 1 minus 2 log s is chi square 2 which is exponential 1 by 2. So this is actually okay. So this is the one theorem. There are many theorem like this. So एक बार मैं वही लिखा देता हूँ, टाइम है ना हमारे पास. So अभी तो हाफ एन आवर है. So we can discuss, है ना.
This is the one transformation in one variable case. There is one more approach, CDF approach of transformation. CDF approach में क्या होता है कि you find CDF of y first. अगर वो मोनोटोनिक नहीं है तो पहले आप CDF निकालो एंड देन उसके बाद PDF निकालो. जैसे है ना, एक देयर इज अ CDF अप्रोच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो मान लो ऐसा है कि लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, है ना, वेयर x इज सम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वेयर x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ऐसा है मान लीजिए. अब क्या होगा कि here g is not necessarily monotonic function, जरूरी नहीं मोनोटोनिक होगा. तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले आप y का CDF निकालेंगे, है ना. You find the CDF of y, so y less than equal to y, so probability gx less than equal to y. Now it depends whether g is increasing, decreasing or both, or so according to which you have to simplify. So यहाँ से simplify करोगे, so x will belong to some interval, y है ना, मुझे पता नहीं किस interval में आएगा, a1 a2. So what will happen, it depends कि क्या set आएगा, and then you will have CDF of y. और एक बार CDF निकल गया, because x का PDF मेरे पास already होगा, so using that PDF we can find CDF of y. Now differentiating both side we can find the PDF of y. If y is continuous, then if y is continuous, then we can differentiate, and we can just differentiate CDF of y with respect to, है ना, so that we'll get the PDF. If it is continuous, if it is discrete, then we can take the difference to find PMF. ठीक है. तो ये एक अप्रोच, मान लो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ये भी CSIR नेट में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन. सो लेट x इज एक्सपोनेंशियल 1, then what is distribution, and y is equal to, and y is equal to greatest integer of x. तो यहाँ तो डिस्क्रीट में चला जाएगा नहीं. अच्छा ठीक है, अभी के लिए ये लिख लो. तो क्या होगा, सो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे y है, मैं 2-3 पार्ट डिफाइन कर देता हूँ मान लो. सो लेट्स से y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, z इज 2x, है ना, मान लो ऐसा है. p इज मान लो x by 2 है सिंपली. सो देन व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा. देन द क्वेश्चन इज इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बताइए आप लोग ट्रांसफॉर्म करके. जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ सो दैट हम ये अप्लाई कर सके. सो कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म इनटू, मतलब अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो y हो सकता है डिस्क्रीट हो, लाइक पहला केस. अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिख दूँ, मान लो x y z, है ना, अभी w लिख दूँ कि मैक्स ऑफ x, 10. अब ये बताइए, या मैक्स की वजह मिन लिख देता हूँ अभी मैं, मिनिमम ऑफ x, 10. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस. सो दिस मे नॉट बी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये आप निकाल सकते हैं ना. सर मिनिमम ऑफ when x following exponential 1, minimum follows exponential n. हाँ, लेकिन वो तब होता है जब आपका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है ना. बट ये तो जस्ट एक दो रैंडम वेरिएबल, ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है और ये एक x है, तो यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होगा. वो तब होता है जब आपके IID एक्सपोनेंशियल है. IIDs हाँ एक्सपोनेंशियल है, देन रेट ऐड हो जाते हैं. सो व्हाट यू आर सेइंग दिस थ्योरम, तो उसमें ये होता है कि लेट xi is exponential lambda I for all I from 1 to n, let's say, and they are independent. So they are independent. उस केस में क्या होता है, and जो y है, y is defined here minimum of x1, x2, xn. So it is a first order statistics. If you have idea of order statistics, so y is the first order statistics. So क्वेश्चन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा.
exponential हाँ summation lambda. जी, so this will be lambda 1 plus lambda 2 up to lambda n, ये आ जाएगा एक्चुअली एक्सपोनेंशियल lambda 1 plus lambda 2 up to lambda n, so ये आ जाएगा। तो ये दिस इज फॉर द एक्सपोनेंशियल, इसमें भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। अभी इसका निकालते हैं, तो इसका पहले वाले का क्या आएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ या तो आप लोग खुद कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं पहले दूसरा वाला पहले करता हूँ ना। तो जेड है 2x, तो बहुत सारे अप्रोच हैं, आप CDF अप्रोच से जा सकते हैं, MGF से भी जा सकते हैं ना। जैसे मान लो अभी तो y के लिए जैसे x का सपोर्ट है मोर देन 0, तो y का सपोर्ट होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, z का सपोर्ट मोर देन 0 है, t का सपोर्ट भी मोर देन 0 है, w का सपोर्ट जो होगा, सो w तो मिनिमम है x और 10 का, तो जो मिनिमम होगा वो होगा। सो w एक्चुअली 0 से 10 के बीच रहेगा, जहाँ जहाँ इक्वल लगा सकते हो आप, इस तरह से। ये सपोर्ट है w का, ये जस्ट सपोर्ट लिख दिया। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज मोर देन 0, देन दिस विल हैपन। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। So first one is geometric. हाँ, ज्योमेट्रिक विथ distribution. व्हाट पैरामीटर। 1 minus E inverse probably. हाँ, I'm तो not दिस विल sure. बी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1, p इज 1 माइनस ई की पावर -1। यस, सेकेंड वाला क्या आएगा। तो अगर मैं इसका CDF निकाल लूँ अभी के लिए, लेट्स यूज द अप्रोच दैट वी यूज देयर। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू Z स्मॉल z, and z is actually 2x less than equal to small z, and now so probability x is less than equal to z by 2, so somehow we reached at CDF of x at z by 2। x was exponential 1, तो CDF is 1 minus e raised to power -x, तो ये आ जाएगा 1 minus e की पावर -z by 2, and from here can you identify, तो डिफरेंशिएट, अगर आपको PDF चाहिए आप डिफरेंशिएट कर लो। सो वी गॉट द CDF ऑफ Z एक्चुअली, सो यू डिफरेंशिएट इट। सो PDF ऑफ Z वी हैव इज डेरिवेटिव 1/2 e की पावर -z/2, यही ना। सो ये आ गया एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2 इन द सिमिलर वे, आ जाएगा ना। सो नाउ व्हाट इज, इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बट यू कैन फाइंड द CDF ऑफ दिस। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज CDF ऑफ W। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज CDF ऑफ W। मेनली एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, मेनली एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आए हैं आपके नेट में या गेट में, मेनली दे आस्क व्हाट इज द मीन ऑफ W, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ W, एक्चुअली ये पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे मैं पूछूं कि W जो है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये ओके है ना, पहला 3 ओके है, YZT ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्रूव करूं फर्स्ट वाला y वाला, ये आप लोग कर पाएंगे, देखो प्रूव कर देता हूं। सो पहले मैं इसका प्रूव कर देता हूं, ये थ्योरम ही है एक्चुअली, इन जनरल ये थ्योरम है, मैं इन जनरल लिखा देता हूं। लेट x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी ज्योमेट्रिक p, वेयर p विल बी 1 माइनस e की पावर लैम्बडा, ये आएगा। इसको प्रूव कर देता हूं मैं, ठीक है। सो जो वहां पे लिखा था, x is exponential lambda, y is greatest integer function of lambda, so that will have distribution geometric with parameter p, where p will be 1 minus e raised to power minus lambda. So let's prove this. So support of y is actually 0 1 2 dot dot dot, because you know PDF is lambda e raised to power minus lambda x, x is more than 0. This is the support of y. So in general, if I find probability y is equal to, let's say, k, I find y is equal to some k, means what? So since we know support of y is a countable set, so support of y is a countable set means it will be a discrete random variable. So y is a discrete random variable, तो इसका PMF निकालेंगे, we will have PMF. So यहाँ से क्या आएगा? So this is greatest integer function at k,
कैन यू टेल मी हाउ टू ओपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा x मोर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस 1। चेक कीजिए। नहीं, जैसे मान लो वैल्यू 1 है, 1 कब आती है? तो 1 से 2 में ना, ठीक है। सपोज k इज आउट ऑफ दिस नंबर ना, k इज फ्रॉम सपोर्ट, तो मान लो k को 1 रखता हूं, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच रहेगी, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? नाउ यू हैव द पीडीएफ। सो ये क्वांटिटी कैसे निकालोगे? यू इंटीग्रेट k टू k प्लस 1 दिस पीडीएफ लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। सो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स अपॉन, ये लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटीग्रेट होके, एंड k टू k प्लस 1। सिंप्लीफाई करो इसको। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट तो आपको क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करके आएगा, पुट कीजिए, तो e की पावर माइनस k लैम्डा, e की पावर माइनस k प्लस 1 लैम्डा, तो e की पावर माइनस k लैम्डा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, एंड दिस इज समथिंग लाइक, यू थिंक इट लाइक e क्यू रेज़ टू पावर k एंड p रेज़ टू पावर 1, वेयर k स्टार्ट्स विथ नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस वाला केस है ये, ठीक है। सो दिस इज द पीएमएफ, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक है ना, सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है। सो आप खुद कंपेयर करो, q इज व्हाट? e की पावर माइनस लैम्डा की पावर k, सो कैन वी राइट इट? सो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस लैम्डा इसकी पावर k, एंड देन दिस इज q, दिस इज p। तो हो गया प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। किसी को डाउट है पूछो, है ना। ये ज्योमेट्रिक है बट सपोर्ट स्टार्ट विद 0, दिस ज्योमेट्रिक इज नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, वो वाला केस है। सो यहाँ हमने प्रूव किया इसको, है ना, दिस वाज द थ्योरम, ये थ्योरम था, हमने इसको यहाँ पे प्रूव किया, दिस वाज द प्रूफ। नेक्स्ट इज ये वाला पार्ट पे आते हैं, ये जो डी है, अभी मैंने इसका प्रूव किया, ये तो जनरल केस था, मतलब ये पर्टिकुलर केस था, and we proved it in general, x is exponential lambda, then this will be geometric p, where p will be this number, है ना। or you can directly write in one line, it is geometric, so this will have geometric distribution 1 minus e raised to minus lambda, okay। और y का सपोर्ट यू ऑलरेडी नो 0 1 2 वाला है, so मतलब नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस आएगा। नाउ जैसे इस तरह क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि व्हाट इज मीन ऑफ डब्ल्यू, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू, पहले ये कैलकुलेट करो, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज सीडीएफ ऑफ डब्ल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है, लेट एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, सो फॉर द इजी कैलकुलेशन मान लो एक्सपोनेंशियल 1, अभी के लिए मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल 1 है, एंड डब्ल्यू इज मिनिमम ऑफ x, 10। so what they are asking, the first thing, इस तरह क्वेश्चन नेट में भी आते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ w बताओ क्या होगा, what is the expectation variance of w, what is variance of w, इवन मैं पूछ लूं, चलो मीडियन बता दो w का, what is cdf of w, this you calculate। मैं अगर और थोड़े से ऑप्शन बनाऊं फॉर जस्ट आपके, है ना, ई है कि W इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, मान लो मैं F ऑप्शन बनाता हूं, अभी बहुत सारे ऑप्शन बना रहा हूं जस्ट आपको चेक करने के लिए। F इज W इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, G is W is neither discrete nor continuous, जिसको मैं मिक्स बोलता हूँ, जैसे मिक्स रैंडम वेरिएबल,
So neither discrete nor continuous means mixed. This is a random variable, so it is a mixed random variable. चेक करके बताइए आप लोग, मैं सॉल्व करूं या वेट करूं? कैलकुलेट कर पाएंगे? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया तो इजीली आ जाएगा, नहीं तो पहले एक एक करके कैलकुलेट कर लो। सो कल की क्लास में मैं ऐसे बहुत सारे रिजल्ट लिखाऊंगा, तो कल अभी कंटिन्यू करते हैं। कल भी ऐसे देर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स जिसपे बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी भी देख रहा था मैं क्वेश्चन जहाँ x यूनिफॉर्म 0 1 है ऐसा कुछ, या कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड tan x माइनस पाई बाई 2 इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है नेट वाले एग्जाम में। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं क्वेश्चन, सो दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। सो इफ यू रिमेंबर रिजल्ट देन इट्स फाइन, इफ यू डोंट रिमेंबर यू हैव टू डिराइव इन द एग्जाम हॉल, है ना, तभी आप कर पाओगे। और ये ऑलरेडी CSIR नेट में आ चुका है। इफ यू सी द PYQ दिस क्वेश्चन ऑलरेडी बीन आस्क्ड। अब देखो ऑप्शंस में इस तरह के हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन निकालना तो बहुत आसान है। You know expectation of gx function of x, if x is continuous random variable, so gx into pdf of x ये आ जाएगा। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आ जाएगा। इसका सपोर्ट तो एक्चुअली 0 से इन्फिनिटी है ना, एक्सपोनेंशियल 1 का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, तो इसका पीडीएफ आएगा e की पावर माइनस एक्स। यहाँ आ जाएगा मिनिमम ऑफ x कॉमा 10 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी इज द सपोर्ट। ठीक है, अब ये इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, तो मुश्किल तो है नहीं। 0 टू 10, 10 टू इन्फिनिटी। अब जब x 0 से 10 में है तो मिनिमम कौन सा होगा? x, तो x इज द मिनिमम। जब x की वैल्यू 10 से इन्फिनिटी में है, सो विच वन इज मिनिमम? 10। अगर इसको ओपन करोगे, ये जो w है, w विल बी x और 10, तो आपको डिसाइड करना x कब, जब मिनिमम है ना, तो जब x की वैल्यू कम होगी 10 से। 10 कब? जब x मोर देन इक्वल टू 10 होगा। मुझे मिनिमम लेना है, सो मिनिमम इस तरह से। अब सिंप्लीफाई कर लो, आसान है ये। 0 से 10 बाई पार्ट लगाओ इसका, है ना, बाई पार्ट लगा के चेक करो क्या आता है। आई थिंक 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एक्स आएगा, आई थिंक सो। चेक कर लो एक बारी। सो ये बाई पार्ट लगा के इंटीग्रेट कर लो, आई थिंक सो ऐसा आना चाहिए शायद। सो 0 से 10 इंटीग्रेट कर लो जो भी आएगा। सो यू इंटीग्रेट दिस एंड इंटीग्रेट दिस। ये इंटीग्रेशन तो आसान है ना। e की पावर माइनस एक्स 10 e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस 10, 10 e की पावर माइनस 10 आ जाएगा। और इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करके पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। कर पाएंगे ना? ऐसे ही ये भी हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट ऐसे ही है। सिमिलरली आप e ऑफ, मैं gx अभी इसको रखा हूँ, है ना, तो मिनिमम मैं यहाँ निकाल रहा था, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ w, ये मैं निकाल रहा था ना। सो ये जो क्वांटिटी मैं कैलकुलेट कर रहा था, दिस वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ w इज इक्वल टू दिस। ओके भाई, नाउ हाउ टू फाइंड वेरिएंस ऑफ w? सो e ऑफ w स्क्वायर यू फाइंड सिमिलर वे, देन यू कैन फाइंड द वेरिएंस। तो ये आसान है, ये कैलकुलेट करना। मीडियन कैसे आएगा? सो वंस यू फाइंड द CDF वी कैन इजिली कैलकुलेट द मीडियन, है ना। इफ वी कैलकुलेट द CDF, तो यूजिंग CDF वी कैन इजिली कैलकुलेट मीडियन। तो so using CDF we can calculate median, तो CDF निकाल लो। so what is CDF of W? तो मैं चलो ये कैलकुलेट कर देता हूँ, CDF of W।
क्या आएगा यहाँ से? You know theorem of total probability. You apply theorem of total probability. So if you apply theorem of total probability, so it will give you there are two cases now. So the one case is when x is less than 10, other is when x is more than equal to 10. So you apply this probability. So x is less than 10, x is more than equal to 10. तो यहाँ से आ जाएगा probability x less than 10, या आप intersection ले लो चाहो तो, है ना? So you take one thing you can do, minimum of x comma 10, use है ना, use theorem of total probability. So x comma 10 less than equal to w intersection x is less than equal to 10. One thing you can do this, यहाँ पे क्या है, more than equal to ना, तो x less than 10. अच्छा सपोर्ट आपको ऑलरेडी पता है कि सपोर्ट क्या है, लेस देन 10. एक ये वाला केस है, और minimum of x comma 10 less than equal to w intersection, this is the one event and this was the other event. This is the one event and the other event I am taking x more than equal to 10. This is theorem of total probability. Probability of event A is probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2. That you further write probability of E1 into A given E1 plus probability of E2 into A given E2. So क्या आंसर आएगा यहाँ से? So answer will be, now support of W is what I said. Support of W is actually W will take value when x is less than 10 it is x, when more than 10 it is 10. So means W is between 0 and 10 actually. Okay, and how CDF look like? So actually CDF of W will look like this. It is 0 when W is less than 0. What we need to calculate when it is more than this, less than 10, and 1 when W is more than equal to 10. This is the standard form of CDF. We just have to calculate this quantity. So we have to calculate only this quantity, and that will be, so that we are calculating. So when W is between 0 and 10, then we are calculating. So this small w we have taken, or omega you can say, that we have taken between 0 and 10. That we have considered. Now what will happen बताइए? So when is x is less than 10, what is value of minimum of x and 10? Intersection we are taking. So x is less than 10. So minimum of x and 10 will be x. So that will reduce to x is less than equal to w intersection x is less than 10. Plus, now when x is more than equal to 10, so which one is the minimum? When x is more than 10 is the minimum. So 10 is less than equal to w intersection x is more than equal to w. This is the simplification. Now further क्या होगा? X is less than equal to w, x is less than 10. So we have taken w as between 0 and 10. So some w is here. So it is saying x is less than that small w and x is less than 10. So what is the intersection? So their intersection will be actually, so intersection will be probability x less than equal to w. This is the first part. And what about this? This is 10 is less than equal to w, true or false? So what we have taken, w is less than 10, not 10 is less than w, 10 is more than w. So this is a false statement, the probability will be 0 here. So this is w is actually less than 10. So this is empty set. So this is probability of empty set intersection x more than equal to 10. This is a false statement, is like empty set. So probability will be 0 actually. So the probability will be 0. So now what you got? Probability x less than equal to w. So CDF of x at w. So what is the CDF of x at w? Is it fine?
तो सी डी एफ एक्स डब्ल्यू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू, यही ना. सो एक्स वॉज एक्सपोनेंशियल 1, सो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, सो यही आ गया. सो यहाँ आ गया 1 माइनस ई रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है? तो डिस्क्रीट होने के लिए क्या होता, वी हैव सीन द थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ CDF इज अ स्टेप फंक्शन और पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन. क्या ये पीस वाइज कॉन्स्टेंट है? नो, सो इट इज नॉट डिस्क्रीट. X is a continuous random variable if and only if CDF is a continuous function on R. So is it a continuous function? Check on 10. So 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 और 10 पे राइट हैंड लिमिट होगी 1. बोथ आर नॉट इक्वल. दिस इज नॉट continuous at 10. This is not a continuous random variable. In fact, actually W is a mixed random variable. So here W is neither discrete nor continuous random variable. Acha, one more thing I can tell you. What is the probability of W being 10? So probability of minimum of x comma 10 being 10. So minimum 10 कब आएगा? जब x की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी तभी 10 आ सकता है, मिनिमम 10. और ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सो दिस प्रोबेबिलिटी इफ यू फाइंड e की पावर माइनस 10 आ जाएगा, है ना. क्या करो, इंटीग्रेट कर लो उसके पीडीएफ को, e की पावर माइनस एक्स को 10 से इन्फिनिटी में, यही आ जाएगा. और प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे नॉन जीरो आ रहा है, मींस इट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस बिकॉज x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू R. तो ये तो डिस्क्रीट भी नहीं है. क्यों नहीं है डिस्क्रीट? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, व्हाट इफ वी मेक द ग्राफ ऑफ द CDF, चलो इसका ग्राफ बना के देखते हैं. सो W वर्सेस CDF ऑफ W. सो CDF ऑफ W, तो इसमें क्या होगा, बिफोर 0 इट वाज 0 एंड 0 पे 1, तो यहाँ ठीक है. नाउ इट विल गो लाइक दिस, ग्राफ ऐसे होगा एंड कहाँ तक, 10 तक. 10 पे वैल्यू क्या है इसकी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 10, और उसके बाद 1 आ जाएगा और इसके बाद ये 1 हो जाएगा. देखिए इसमें ये ग्राफ है इस फंक्शन का. सो दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. दिस इज नाइदर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नॉर अ, so CDF is neither a continuous function nor a step function. That's why X is a neither discrete nor a continuous random variable. So it is a mixed random variable actually. So W is a mixed random variable. Okay. तो ये CDF आ गया. मीडियन बताइए क्या होगा, मीडियन. तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी e की पावर माइनस 10 की. तो हाफ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हाफ इधर ही आ जाएगा. व्हाट इज इनवर्स इमेज ऑफ दिस? तो अगर मैं इसको रख देता हूँ 1 माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू को हाफ, सो ई की पावर माइनस डब्ल्यू इज 1/2, सो डब्ल्यू इज ln2 आ जाएगा. सो ln2 यहाँ एक नंबर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, क्योंकि आई थिंक 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 हाफ से ज़्यादा होगा. तो इस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है. दिस इज द मीडियन. So what is the median of W? So this is the log 2. Because है ना, that 1 cannot be equal to half, 0 cannot be half, this will be equal to half. तो इसको हाफ रख दिया. So log 2 is the median here. ठीक है. So मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे थ्योरम्स मैं कंटिन्यू करूंगा टाइप, कल की जो क्लास होगी. सो इन द, है ना, टुमारो वी विल राइट मोर थ्योरम्स लाइक दिस, जो आपको याद रहेगा. तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं. यू सी PYQs, क्योंकि आपको एग्जाम निकालने हैं ना, so you have to solve CSR net PYQ. You solve all PYQs CSR net of single random variable. You ask me questions that you could not solve, है ना. so चाहे वो रैंडम वेरिएबल और बेसिक प्रोबेबिलिटी हमने अभी डिस्कस किया है. सो यू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, सिंगल रैंडम वेरिएबल एंड दिस. सो अभी मैं इसी का कंटिन्यू करूंगा. सो क्या सिलेबस ओपन है, यही है ना. सो अभी इस पे जो थ्योरम्स है ना, सो आई विल बी डिस्कसिंग थ्योरम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक.
So some transformation like x is uniform 0 1 minus 2 log x is chi square 2 and all that. So I will be discussing theorems based on these distributions. Okay, then we'll start multivariate distribution, and again I'm requesting you to solve questions, whether it is PYQs, non PYQs or any questions. You solve questions and then you ask doubts. बात थ्योरी में कुछ डाउट हो स्टिल यू कैन आस्क. ठीक है, तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूं. सो टुमारो आई विल बी कंटिन्यूइंग थ्योरम्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. ओके, एंड यू सॉल्व PYQs एंड देन डिस्कस विथ मी. तो अभी के लिए चलिए, थैंक यू. गेट की क्लास होगी, सो दोज हु वांट टू कैन अटेंड.